Hello friends, now this practical is redox titration. Redox titration means you know that here reducing agent and oxidizing agent takes place. That means this is a KMnO4 solution, this is a KMnO4 solution, X normal which is unknown, and this is a 0.095 normal or say molar FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O solution. फिर से एक बार X molar KMnO4 solution which is a colored, this is act as oxidizing agent. This is known as 0.095 molar FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O. This is known as ferrous ammonium sulfate or Mohs salt. Remember this. You have to find out unknown quantity. Which is unknown quantity? X molar KMnO4 solution is a unknown quantity. And 0.095 molar or say whatever the molarity is given in your examination is your known quantity. From known quantity we find out unknown quantity. Which particular apparatus is required here? So first of all, aim of this practical is to determine the strength of or say molarity of unknown KMnO4 solution by 0.095 molar FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O solution. Is it clear? This is your redox titration. This is aim of the practical. Now apparatus required. Apparatus is, this is known as burette. This is known as burette stand. This is pipette. This is known as conical flask. This is known as test tube. Okay. So and this particular apparatus is known as test tube stand. This is burette stand. Once again, burette stand, burette, pipette 10.0 ml, exact 10.0 ml. This is a test tube, conical flask, and this is a funnel. Funnel is for pour the solution. Now, which particular another solution is used? You have to use here X molar KMnO4 solution, 0.095 molar FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O. This is known as ferrous ammonium sulfate solution. And this particular beaker contains two normal H2SO4 solution. Two normal H2SO4 solution. Now, particularly in this practical, what you have to do? First of all, just you see, this burette is rinsed with the help of, first of all, we can say that, which water? Tap water. That means our regular water. Rinse all the apparatus carefully. First of all, in this particular procedure, you have to carry out this type of procedure in which you have to rinse all the apparatus. First of all, rinse this burette with the help of tap water. Then rinse with the help of filling solution, in which colored solution is KMnO4 solution, X molar KMnO4 solution. We have to fill in burette. So once again we have to rinse with the help of KMnO4 solution. Just you see rinsing procedure.
and then set in a burette stand properly. Use funnel and very carefully and remove air bubble by pressing this particular, we can say that pinch cork. This is known as pinch cork. Might be you learn in 11th standard. Set 0. Here 0 ml is there, 1 ml is there, 2 ml, 3 ml, up to 25 ml. Pipette is there. Upper meniscus CO2 considered. Upper meniscus means what? Two layers are there, upper layer and we can say that downward layer. You have to show upper layer for coloring solution. Now, rinse conical flask. This is a conical flask. Rinse with the help of tap water. Then this pipette is also rinsed with the help of, आपको pipette को भी फिलिंग सॉल्यूशन से क्लीन करना है. और यहाँ पे आपको 10 ml सकअप करना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. 10.0 ml पिपेटिंग आउट करना पड़ेगा. एक बार फिर से ले लेते हैं. Okay, now 10.0 ml we have to suck up with the help of pipette. Yes. Exact 10.0 ml you have to suck up with the help of pipette and transferred it very carefully in a conical flask. This is the procedure. Just you have to take 3 times. 3 times. Okay. This is known as dead volume. It is not required. Now we have to add here 2 normal H2SO4 solution. This is 2 normal H2SO4 solution. 1.5 test tube.
1.5 test tube, 2 normal H2SO4 solution we added. Because of maintain pH as well as acidic medium as well as catalyst, speed out the reaction. Now just you have to study it and now you have to take reading. अब आपको क्या करना है 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 इस तरीके से जाना है. फिर से बता देता हूँ, पहले हम पायलट रीडिंग लेंगे, जो भी कलर आए वो कंसीडर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 0 to 1 लेते हैं, प्रेस करोगे तो 0 to 1 आएगा. यहाँ पे कलर चेंज नहीं होता. आगे जाओ 2 to 3 पे जाओ, 3 to 4, यहाँ 4 to 5, 5 to 6. यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए. तो यहाँ पे आपको अगर मैं यहाँ पे 8 तक गया लेकिन कलर चेंज अभी भी नहीं हो रहा, फिर से 9 पे गया तो कलर चेंज हो गया. यानी कि आपका रीडिंग 9.0 ml पायलट रीडिंग है, लेकिन अभी हम नहीं कह सकते. तो दूसरी बार क्या करना है, फिर से यही प्रोसीजर रिपीट करनी है. तो क्या करोगे आप, फिर से एक बार कॉनिकल फ्लास्क को अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रोसीजर भी देख लीजिए. इस तरीके से रोटेट करके आपको स्लोली ऐसे रिंस करना है. 2-3 बार रिंस कर दो, क्लीन कर दो. ये क्लीन हो गया. ओके, नाउ फिर से एक बार आपको यहाँ पे KMnO4 सॉल्यूशन फिलअप करना है. जीरो ml सेट करना है. उसके बाद में कॉनिकल फ्लास्क जो फिल्म है उसमें आपको फिर से एक बार FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O को 10.0 ml सब करना है. ये देख लीजिए 10.0 ml हो गया. बहुत ही केयरफुली इसको ट्रांसफर कर दो. दिस इज नोन एज डेड वॉल्यूम. पिपेट को अच्छी तरह रख दो. उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क में आपको 1.5 टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे हमने क्या लिया था 10.0 ml फेरस एमोनियम सल्फेट ले लिया था. इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेस्ट ट्यूब H2SO4, 2 नॉर्मल H2SO4. आपका टेबल रिएजेंट ही है, लेबोरेटरी में अवेलेबल है. और बाद में आपको फिर से 9 ml आपका रीडिंग था 9.0 ml, तो आपको 9.0 minus 2 कर दो. 7.0 तक 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3 इस तरीके से जाना है. तो फिर से एक बार 0 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक गए. अब आपको यहां नहीं देखना, अब नीचे ही देखना है. कलर चेंज लाइट पिंक स्टेबल कब होता है, तो एक एक ड्रॉप आपको यहां पे ऐड करना पड़ेगा.
ये देखिए थोड़ा लाइट पिंक आ रहा है लेकिन स्टेबल आना चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक ड्रॉप हम और डालते हैं, हो गया, ये कलर आ गया। तो ये आपका एंड पॉइंट है, इसको क्या कहेंगे, एंड पॉइंट। लेकिन ये एंड पॉइंट अभी नहीं कहा जाएगा, ये पहला अटेम्प्ट था, उसके बाद में उसी तरीके से दूसरा अटेम्प्ट, उसी के तरीके से तीसरा अटेम्प्ट करना है और कांस्टेंट रीडिंग जो आए वो आपको लिखना है। फिर से बता देता हूं, पायलट रीडिंग हमारा था, यहाँ पे पायलट रीडिंग चेंज नहीं हुआ है, 9.0 ml इज अ पायलट रीडिंग एंड 9.1 ml इज योर कांस्टेंट रीडिंग। मैं बता देता हूं, यानी कि यहाँ पे 8.1 आपका क्या आया, 9.0 ml इज योर पायलट रीडिंग एंड 8.1 ml इज योर कांस्टेंट रीडिंग। एक बार फिर से 8.1 ml इज योर कांस्टेंट रीडिंग, यानी कि आपका रीडिंग कितना आया, 8.1 ml। अगर आप दूसरी बार करते हो फिर से आपका 8.2 आया, फिर से आप रिपीट कर रहे हो, फिर से आपका 8.2 आया, तो आपका कांस्टेंट रीडिंग कौन सा होगा, जो रिपीट ज्यादा हो रहा है वो आपका कांस्टेंट रीडिंग है, यानी कि 8.2 ml इज योर कांस्टेंट रीडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कांस्टेंट रीडिंग अच्छी तरीके से निकाल लिया तो ये लेबोरेटरी का जो काम है, यानी कि जो अपरेटस का काम है, वहां पे खत्म होता है। अब हम थियरी पार्ट्स में जाएंगे, लेकिन फिर से एक बार बता देता हूं, आपको KMnO4 सॉल्यूशन ब्यूरेट में फिलअप करना है। कॉनिकल फ्लास्क में आपको क्या लेना है, 10.0 ml 0.095 मोलर फेरस एमोनियम सल्फेट एग्जैक्ट लेना है। उसमें आपको 1.5 टेस्ट ट्यूब H2SO4 ऐड कर देना है। सही है, ये सेशन खत्म। यहाँ पे दूसरा क्या है, यहाँ पे आपने 0.0 ml तक KMnO4 डाल दिया, बाद में आपको रीडिंग लेना है जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से, और पहली बार जो भी कलर आए वो आपको पायलट रीडिंग के हिसाब से लेना है, जो भी कलर आए वो, और पायलट के बाद में आपको 2 ml माइनस करना है और बाद में आपको चेक करना है। फिर से एक बार रिपीट करना है ये प्रैक्टिकल यानी कि ये प्रोसीजर, और प्रोसीजर के बाद आपको पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, इन 3 अटेम्प्ट में सुन लीजिएगा एक बार, डू नॉट टेक एवरेज, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड मत करना। जो भी कांस्टेंट रीडिंग ज्यादा आता है, यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिकल किया उसके हिसाब से 9.0 ml मेरा पायलट रीडिंग है, 8.1 ml, दूसरी बार मैंने लिया 8.2 ml, तीसरी बार मैंने लिया 8.2 ml, यानी 8.2 ml रिपीट हो रहा है, तो कांस्टेंट रीडिंग कौन सा होगा, 8.2 ml। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल ये फिनिश करना है। तो ये प्रैक्टिकल कहा जाएगा रेडॉक्स टाइट्रेशन, और उसके बाद में कैलकुलेशन पार्ट आता है, वो हम थियरी पार्ट में पढ़ेंगे। Okay, now theory part. Experiment 2, redox titration. Aim to determine the concentration of given KMnO4 solution by titrating it against solution of 0.095 molar ferrous ammonium sulfate FeSO4 NH4 twice 6SO4 into 6H2O. FeSO4 NH4 twice SO4 into 6H2O. This is the formula of ferrous ammonium sulfate, which is also known as Mohr salt. Atomic mass is given, and atomic mass of given solution which is unknown in that particular part is given at here. Now, apparatus required in laboratory, you already learn your demonstration part: burette, pipette, conical flask, burette stand, funnel, then
test tube, etc. Material required: X molar KMnO4 solution which is act as oxidizing agent, 0.095 molar ferrous ammonium sulfate which is known as FAS solution or Mohr solution, then dilute H2SO4 solution. यहाँ पे आपको ब्यूरेट पे क्या लेना है आप जानते हो, X मोलर KMnO4 सॉल्यूशन 0.0 ml तक आपको सेट करना है बाय रिमूविंग एयर बबल. कॉनिकल फ्लास्क 10.0 ml of 0.095 molar FAS solution and 1.5 test tube of dilute H2SO4 solution. इंडिकेटर यहाँ पे KMnO4 itself इंडिकेटर होगा. आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे, वहां पे KMnO4 itself इंडिकेटर बिकॉज ऑफ DD ट्रांजिशन टेक्स प्लेस. कलर चेंज, कलरलेस टू स्टेबल लाइट पिंक. याद रखिएगा कलर चेंज क्या रहेगा, कलरलेस टू स्टेबल लाइट पिंक. जो पिंक कलर KMnO4 का है वो आपका एंड पॉइंट होगा. तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 0.095 मोलर फेरस एमोनियम सल्फेट प्रिपेयर करने को कहेंगे. तो आपको क्या करना है, तो पहले आप एक फॉर्मूला रखेंगे 1000 ml 1 मोलर FAS ferrous ammonium sulfate equivalent to 392 gram FAS. 1000 ml 1 molar FAS ferrous ammonium sulfate equivalent to 392 ग्राम FAS. अब आप कहेंगे 392 ग्राम्स क्या है, तो 392 ग्राम्स पर मोल जो है वो मोलिकुलर मास ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट है. अगर यहाँ पे FeSO नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सबका एटॉमिक मास लिख दोगे तो यहाँ पे 392 ग्राम्स पर मोल आएगा. तो आपको याद रखना पड़ेगा 1000 ml 1 molar FAS equivalent to 392 grams FAS. कितने ml में चाहिए, 0. यहाँ पे मोलारिटी कितनी चाहिए 0.095. सो 1000 ml 0.095 molar FAS equivalent to what, how many grams flow to dissolve. तो आपको एक कैलकुलेशन करना है और कैलकुलेशन के पार्ट में 0.095 into 392 अगर मल्टीप्लाई करते हो, अगर 0.095 को 0.1 तरीके से ले तो 0.1 into 392 यानी कि 0.1 into 392 तो आएगा 39.2 ग्राम. इतना फेरस एमोनियम सल्फेट आपको 1000 ml में डिसॉल्व करना है. ये पार्ट होगा. अगर ये आपको प्रिपेयर करने को कहे तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है. फिर से एक बार 1000 ml 1 molar FAS equivalent to 392 grams ferrous ammonium sulfate solution. 1000 ml 0.095 molar हमें चाहिए 0.095 molar equivalent to what, तो 0.095 मोलर को मैं 95 मोलर की जगह मैं 0.1 मोलर बनाना चाहता हूं तो 0.1 into 392 आएगा तो 39.2 आएगा. अगर 0.095 into 392 ले लिया तो मेरा जो वैल्यू आएगा उतना ग्राम्स हमें एग्जैक्ट बैलेंस एनालिटिकल बैलेंस से बैलेंस करना है, वे करना है एग्जैक्ट और 1000 ml में डिसॉल्व करना है तो वो बनेगा 0.095 मोलर फेरस एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन. ये आपको याद रखना पड़ेगा. लेबोरेटरी में प्रिपेयर करके देंगे, एग्जामिनेशन में ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करके देते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है. दूसरी बात, यहाँ पे आप देख रहे हो कॉनिकल फ्लास्क इंडिकेटर कलर चेंज, ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही सप्लीमेंट्री यानी कि आंसर शीट दी जाएगी. कोई टेक्स्ट बुक या कोई प्रैक्टिकल बुक नहीं देंगे तो इसमें कोई सपोर्ट नहीं होगा. तो आपको ये पूरा याद रखना पड़ेगा. उसके बाद में देखिए केमिकल इक्वेशन. ओके, नाउ केमिकल इक्वेशंस ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पार्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे. यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा. देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, इस तरह आंसर शीट में आप कैसे लिखोगे. तो आपको ये बात मैं बता देता हूँ, KMnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
और फेरस एमोनियम सल्फेट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसको आपको आयनाइज करना है K प्लस MnO4 माइनस, यहां पे आपको मिलेगा Fe+2, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला देखें FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O, तो यहां पे आपको ये सब देखना नहीं है, यहां पे Fe+2 ही देखना है, सिर्फ ये पार्ट देखना है। याद रखने की टेक्निक से देख लीजिएगा एक बार, कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा और कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस तरीके से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे K प्लस MnO4 माइनस है, तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा MnO4 माइनस इज कन्वर्टेड इनटू Mn+2। MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn+2 में। तो अगर आप चैप्टर नंबर 9 में और 8 में रेडॉक्स रिएक्शन में अच्छी तरह पढ़े हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 4 2 8, 8 माइनस 1, तो मैंगनीज का आएगा +7, तो यहाँ पे मैंगनीज का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर है, +2, यानी +7 to +2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 7 ऑक्सीडेशन नंबर से +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, -5। माइनस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा, और रिडक्शन रिएक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। ओके, अब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की वजह से आपको चार्ज किससे बैलेंस करने पड़ेंगे, H+ से, क्योंकि हमने H2SO4 लिया है, तो H2SO4 का H+ डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप जानते हो। तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो चार्ज होगा -5 और -1, रिएक्टेंट साइड चार्ज है -6, प्रोडक्ट साइड चार्ज है +2। दोनों की तरफ अच्छे, यानी कि जो चार्ज है वो बैलेंस करना हो साइन के साथ, तो कौन सा नंबर यहाँ पे ऐड करोगे, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं, अगर मैंने 8H+ लिख लिया तो 8 - 6 +2 होगा, और यहाँ पे +2 होगा, यानी कि 8H+ 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 माइनस। अब यहाँ पे H+ है ही नहीं, तो आपको क्या करना है, जो H+ है उससे आधा मोल यानी कि 4 मोल्स ऑफ H2O यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यानी ये 8H+ plus 5 electron plus MnO4 minus it gives Mn+2 plus 4H2O। ये पार्ट आपका हो गया रिडक्शन रिएक्शन, और इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या आएगा, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आएगा 8H+ रिडक्शन हाफ रिएक्शन 8H+ plus 5 electron plus MnO4 minus it gives Mn+2 plus 4H2O। ये आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बहुत ही इजी है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे प्रोसीजर को कैंसिल करता हूँ अभी, तो Fe+2 है, तो Fe+2 को आप Fe+3 में कितना ऐड रखिए, कन्वर्ट कर दीजिए, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, अगर हम देखें तो +1, प्लस का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है। तो दोनों तरफ देख लीजिए, चार्ज बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे 1 × +3 हो जाएगा, 1 × -1 यानी +3 - 1 = +2। तो दोनों साइड चार्ज बैलेंस हो गए, यहाँ पे कुछ दूसरा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो यहाँ पे आएगा Fe+2 it gives Fe+3 plus इलेक्ट्रॉन,
ये जो है ये रिडक्शन रिएक्शन है, ये जो है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। याद रखिएगा KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और फेरस एमोनियम सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं और रिएक्टेंट साइड एडिशन हो जाता है, प्रोडक्ट साइड एडिशन हो जाता है, इसको कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। तो टोटल रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन 8H plus 5Fe+2 plus MnO4 minus, it gives 5Fe+3 plus Mn+2 plus 4H2। इसका 2 मार्क्स या 1 मार्क्स आपको जितने जी मार्क्स कहेंगे उतना आपको लेना पड़ेगा और ये कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बुक अवेलेबल नहीं है, ये कैलकुलेशन अपने आप को याद रखना पड़ेगा। तो अगर आपने रेडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है और यहाँ पे ये टोटल रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा और टोटल रेडॉक्स रिएक्शन के हिसाब से जो सारे चार्जेस हैं और जो मॉलिक्यूल एटम्स है वो सब बैलेंस हो जाएंगे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल फिर से एक बार बता देता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर में हमने लेबोरेटरी में किया था। फाइनल रीडिंग मैंने बताया था, पायलट रीडिंग स्टार्टिंग में आता था, अगर आपको याद हो तो 9.0 ml। एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे गलती करते हैं। अगर आप ब्यूरेट लेते हो, इस तरह की ब्यूरेट होती है और ब्यूरेट में ऊपर की साइड ऐसा होता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे सेट होता है और 0 के बाद में 1 2 3 4 उसके बाद में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 यानी 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। तो ये पार्ट है 0 1 2 3 4 और 5, ये 0.5 हो गया और यहाँ पे हो गया 1 ml। इस तरीके से हमें 2 ml 3 ml ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि आपका वैल्यू, अगर मैं ऐसा कहता हूं कि ये वैल्यू जो है वो 10 ml है और ये 9.0 ml है और यहाँ पे अगर आप देखो तो 9.2 आपका रीडिंग आया तो आपको 9 के बाद में 9.1 और 9.2 यहाँ पे आपको रीडिंग देखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 9.2 यहाँ पे देख लीजिए, यानी कि 9.2 रीडिंग आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से रीडिंग में भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो आपका जो रीडिंग है हमारे हिसाब से यहाँ पे हम देखें तो 8.0 और 9.0 आ रहा है, तो पायलट हमारा आएगा 9.0 ml। फर्स्ट अटेम्प्ट हमने लिया था 8.1 ml। अगर मैंने सेकंड अटेम्प्ट कर लिया 8.1 ml, उसके बाद में अगर मैंने दूसरा भी कर लिया 8.1 ml और लास्ट में आया 8.2 ml, तो कांस्टेंट कौन सा है? जो वैल्यू ज्यादा आती है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इनिशियल कितना था? स्टार्टिंग में हम कितना सेट करते थे? 0.0 ml। अगर लाइन में से 0 जाए तो क्या मिलेगा? 9.0 ml। यहाँ पे 0.0 ml तो यहाँ पे मिलेगा 8.1 ml। यहाँ पे 0.0 ml तो यहाँ पे मिलेगा 8.1 ml। यहाँ पे 0.0 ml तो फिर से मिलेगा 8.1 ml। फिर से एक बार यहाँ पे 0.0 ml इनिशियल होगा तो यहाँ मिलेगा 8.2 ml। अगर आप देखो तो कांस्टेंट कौन सा है? ज्यादा जो रीडिंग आता है, जितनी बार रिपीट होता है वो कांस्टेंट होगा। Do not add 8.1 plus 8.1 plus 8.1 plus 8.2 divided by 4। आपको एवरेज लेना नहीं है। जो रीडिंग एक्यूरेसी से ज्यादा बार आता है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। सो 8.1 ml हो गया। तो अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन टेबल इसको कहते हैं, आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर दिया है, तो प्रैक्टिकल में आपने पायलट रीडिंग ले लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, उसके बाद में आपने फोर्थ अटेम्प्ट लिया और अगर रीडिंग 8.1 ml आ गया तो ये आपका कांस्टेंट रीडिंग हो जाएगा। ओके, सो यहाँ तक हम
यहाँ तक हम ऑब्जर्वेशन टेबल तक रहते हैं, बाद में कैलकुलेशन पार्ट पढ़ेंगे। नाउ कैलकुलेशन पार्ट, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ऑब्जर्वेशन टेबल उससे पहले आपको प्रोसीजर लिखनी है, लेकिन प्रोसीजर जो हमने लेबोरेटरी में परफॉर्म किया वही प्रोसीजर हमें लिखनी है सिंपल लैंग्वेज में, तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये आपको दिया नहीं गया होगा, तो आपको याद रखना पड़ेगा मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे क्योंकि अननोन है, गिवन सॉल्यूशन इज KMnO4। तो यहाँ पे लिखा है फेरस एमोनियम सल्फेट पोटेशियम परमंगनेट A1 M1 MV1 is equal to A2 M2 V2। अब A1 और A2 क्या है वो मैं बता देता हूँ फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में जो A1 और A2 आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों कि यहाँ पे देख लीजिए M1 0.095 मोलर जो हमें A में दिया गया है, B1 हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने जो लिया, जो क्वांटिटी ली है नोन है 10.0 ml। A2 क्या है अभी बताता हूँ, M2 हमें फाइंड आउट करना है, V2 है कांस्टेंट रीडिंग जो हमने ब्यूरेट रीडिंग में कंप्लीट किया था जो 8.1 ml है। और इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन पहले A1 और A2 जानने के लिए फिर से एक बार केमिकल रिएक्शन को बता देता हूँ। तो आपने फेरस एमोनियम सल्फेट की फॉर्मूला FeSO4 NH4 twice SO4 6H2O ली। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे आप आयनाइज करोगे तो हमें मिलेगा Fe+2। केमिकल रिएक्शन में हमें देखा गया है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आएगा Fe+2 it gives Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे A1 क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुए, तो वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि A1 = 1 यहाँ पे लिया गया है। इसी तरीके से KMnO4 उसका हम अगर फिर से आपको याद हो तो लिख दो डायरेक्टली, अगर नहीं याद हो तो फिर से एक बार देख लो। MnO4 माइनस Mn+2, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आएगा +7, 4 ऑक्सीजन का -2, 4 2 8, 8 -1 +7 यहाँ पे आएगा +2, 7 से 2 तक ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, उसका मतलब हमें -5 करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि माइनस होता है रिडक्शन रिएक्शन, तो आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमें पता है H+ का यूज करना है, क्योंकि H2SO4 लिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8H+। और दूसरी बार यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको जितने यहाँ पे H+ है उससे हाफ H2O लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे जो 5 है वो आप देख रहे हो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन गेन, 5 इलेक्ट्रॉन, वो A2 है। A1 = 1, A2 = 5, M1 हमें दिया गया है 0.095 मोलर, M2 क्वेश्चन मार्क अननोन है, V1 = 10.0 ml, V2 = 8.1 ml, वो कांस्टेंट रीडिंग है। अगर हम M2 को यहाँ पे फॉर्मूला मेकिंग करेंगे तो A1 M1 V1 डिवाइडेड बाय A2 V2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.02345 मोलर क्या आएगा, मोलरिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन। दूसरी बात, यहाँ पे ग्राम्स पर लीटर ऑफ KMnO4 भी निकालना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मोलारिटी इनटू मोलर मास। तो मोलारिटी क्या है, KMnO4 की मोलारिटी है 0.02345, अब हमने कैलकुलेट की है। KMnO4 का मोलर मास क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मोलर मास ऑफ KMnO4 is equal to
atomic mass of K plus atomic mass of Mn plus 4 into atomic mass of ऑक्सीजन। K का एटॉमिक मास आएगा 39, Mn का एटॉमिक मास आएगा यहाँ पे 55, 4 into 16। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 158 ग्राम मोल बस। तो ये हो गया मोलर मास। तो इस तरीके से हमें KMnO4 का मोलर मास निकालना है। तो 158 ग्राम्स पर मोल आ गया। 0.02345 into 158 करोगे तो आएगा 3.7051, यानी कि 3.7051 ग्राम्स KMnO4 हमने 1 लीटर में डिसॉल्व किया था। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल में हमें लास्ट में रिजल्ट भी देखना है। रिजल्ट में आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, तो कितनी है 0. यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.02345 मोल ग्राम्स पर लीटर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे 3.7051 ग्राम्स पर। इस तरीके से जो एक्सपेरिमेंट 2 हमारी प्रैक्टिकल बुक में दिया गया है वो सारे कैलकुलेशन यहाँ पे फिनिश हो गए।